أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب وموضوعه الكلمة والكلام. تو یہ تو تعریف ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ اس میں کلمہ اور کلام دو چیز ہے. لفظ موضوع، اصل بات ہے لفظ موضوع. تو لفظ موضوع دو قسم میں ہو سکتا ہے، کلمہ یا کلام. اگر کلام ہو تو مفید ہوگا یا غیر مفید. اگر مفید ہو تو پھر دو قسم پر ہے، مرکب مفید. دو قسم ہے کلام کے، مفید ہوگا یا غیر مفید. اگر غیر مفید ہو تو مرکب اضافی ہو سکتا ہے، یا تو بنائی ہو سکتا ہے، یا معنی صرف ہو سکتا ہے، یا تو صوتی ہو سکتا ہے. اگر غیر مفید ہو، اگر مفید ہو تو تین قسم پر ہے. صرف و صرف کا استعمال رکھتا ہے، یا تو وہ اعتبار صفت ہوگا یا وہ اعتبار اصل ہوگا. اگر صرف و صرف کا استعمال ہو تو وہ دو حال سے خالی نہیں، تین حال سے خالی نہیں ہو سکتا ہے. وہ اعتبار لفظاً ہوگا یا نظراً المتکلم، یا تو حصی ہوگا. اگر وہ لفظاً ہو تو اس کی چند اقسام ہیں، مثلا امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، فعل طلاق، فعل مضاف، وزم اور عصا. یہ ہے جملہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو اس کے بعد یہ تو ہے جملہ، یہ مفید کا ایک قسم ہے، اس کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے. تو پھر قسم دو طرح کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مطلقاً یا تو استطاع. اگر وہ اعتبار صفت ہو تو وہ بہت سارے اقسام ہیں، مثلا مبنیہ، معللہ، معترضہ، مستنکہ، نتیجہ، ابتدائیہ یا تو معطوفہ. اگر وہ اعتبار اصل ہو تو تاثیر ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ، فعلیہ، ظرفیہ، شرطیہ. اس کے بعد میں نے پہلے بتایا کہ دو طرح کا آتا ہے، جملہ ہوگا یا تو کلمہ ہوگا. اگر کلمہ ہو تو تین ہو سکتا ہے، وہ اسم یا تو فعل یا تو حرف. اگر وہ اسم ہو، اب اسم فعل حرف کی تعریف یہ ہے کہ اگر خود کو خود اپنے معنی پر دلالت کرے، کسی کا محتاج نہ ہو تو اس کو ہم اسم کہیں گے. اگر زمانہ کو شامل نہ رکھے تو اسم کہیں گے. اگر زمانہ کو شامل رکھ لے تو اس کو ہم فعل کہیں گے. اگر خود بخود اپنے معنی کو نہ بتلائے بلکہ دوسرے کسی کا محتاج ہو تو وہ حرف ہوگا. تو پہلے ہے اسم. تو اسم ہو سکتا ہے وہ تابع ہوگا یا غیر تابع. اگر اسم غیر تابع کم ہے، اسی لیے پہلے تابع بتا دیتا ہوں. تابع کی 5 قسم ہیں: صفت، تاکید، بدل، عطف، بیان، عطف. اگر صفت ہو تو پھر وہ دو قسم پر ہے، ہو سکتا ہے صفت بحال موصوف یا تو بحال متعلق موصوف. اگر بحال موصوف ہو تو وہ 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے اپنے مطبوع کے ساتھ، اور ایک وقت 5 چیز پایا جانا ضروری ہوتی ہے. اگر صفت بحال متعلق یا موصوف ہو تو 5 چیز میں مطابقت ہوتی ہے، ایک وقت 2 چیز کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہے تاکید. تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، تاکید لفظی یا تو تاکید معنوی. اگر تاکید لفظی ہو تو لفظاً یعنی لفظ کو مقرر کرنے سے تاکید لفظی ہوتی ہے. اگر تاکید معنوی ہو تو اس کے چند لفظ ہیں جن سے تاکید لائی جاتی ہے. اگر غیر تابع ہو، باقی رہا ہے بدل پھر 5 قسم ہیں. بدل الکل 4 قسم ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال، بدل الفرد. اگر بدل الکل یعنی مبدل منہ کے کل پر یعنی پورے مبدل منہ پر دلالت کرے، یعنی مبدل منہ کا مدل جو ہوگا بدل کا وہی ہو، یعنی نسبت دونوں کا ایک ہی ہو تو اس کو ہم بدل الکل کہیں گے. اگر مبدل منہ کے بعض پر دلالت کرے تو بدل البعض کہیں گے. اگر مبدل منہ کے استعمال یعنی مبدل منہ کے استعمال کسی چیز پر اگر دلالت کرے تو اس کو بدل الاستعمال کہیں گے. اگر غلطی کے بعد کسی لفظ کو بتایا جائے تو اس کو ہم بدل الغیب کہیں گے. اس کے بعد عطف حرف یعنی حرف کے ذریعہ جس کو عطف کی جاتے ہیں ماقبل سے، اس کو عطف حرف کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے عطف بیان. عطف بیان وہ صفت نہیں بلکہ اپنے مطبوع کو روشن کرتا ہے. اب اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے تو بتاتے ہیں، دو نام میں سے جو مشہور ہوگا یعنی جس نے اپنے مطبوع کو روشن کرے گا وہ ہوگا عطف بیان. اگر غیر تابع ہو تو مستثنیٰ ہوگا یا غیر مستثنیٰ. اگر مستثنیٰ ہو تو اس کی چند قسمیں ہیں. اعراب کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے. ہو سکتا ہے وہ منصوب
पहली सूरत में वो मंसूब हो सकता है, या तो मंसूब होगा और बदल होगा, या तो आमिल के एतबार से आएगा, या तो मजरूर होगा। मंसूब हो तो उसकी बहुत सारी सूरतें हैं। अगर इल्ला के बाद कलाम में मौजब में हो, या तो मुस्तस्ना मुनक़ते हो, या तो मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन्हु पर मुक़द्दम हो, या तो हाशा खाला के बाद आए अक्सर के नज़दीक, या तो मा हाशा मा खला लैसा ला यकुन के बाद हो, तो इन सूरतों में मुस्तस्ना मंसूब होती है। अगर नसब और बदल दो सूरत में होती है, नसब और बदल अगर और एक सूरत है जिसमें नसब और बदल जायज़ है, यानी अगर मुस्तस्ना इल्ला के बाद कलाम गैर मौजूद में वाक़ हुआ, मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो तो उसमें नसब और बदल जायज़ है। अगर मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो तो उसको मुस्तस्ना मुफ़र्रक़ कहा जाता है और उसमें आमिल के एतबार से रब दिया जाता है। और एक सूरत है चौथी सूरत, यानी मुस्तस्ना मजरूर होती है गैर सिवा सवा के बाद, या तो हशा अक्सर हशा में इख्तिलाफ़ बात कहते हैं उसके बाद मजरूर होती है, उनके बाद मजरूर होती है मुस्तस्ना। और एक है मुस्तस्ना और एक लफ्ज़ है गैर, गैर का एराब क्या होता है तो बताते हैं उलमा नुहात के। मुस्तस्ना वो इल्ला के जितने अहकाम हैं तमाम मुस्तस्ना गैर में भी एराब की सूरत से इस्तेमाल होगी। अगर गैर ताबे हो, मसलन गैर मुस्तस्ना हो, मुस्तस्ना की बात तो गया, गैर ताबे गैर मुस्तस्ना हो सकता है आमिल या गैर आमिल। अगर आमिल हो सकता है अस्माए शर्तिया, अस्माए अफ़ाल, अस्माए इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें सिफ़त मुशब्बा, इसमें तब्दील मस्दर, इसमें मुदाफ, इसमें तामिया, अस्माए किनाया। अगर वो गैर मुस्तस्ना गैर आमिल हो सकता है बोएतबारे लफ्ज़, या तो बोएतबारे तादत, या बोएतबारे तारीफ़ तनकीर, या तो बोएतबारे मुशब्बात बिल फ़ेल, या तो इसमें तग़यीर, या तो इसमें मुअव्वल, या तो बोएतबारे तारीफ़ तनकीर, या तो बोएतबारे मक़बूल, या तो बोएतबारे एराब दुनिया। अगर लफ्ज़ के एतबार से हो सकता है सही, या तो मंसूस, या तो ममदूद, या तो मक़सूर। अगर बोएतबारे तादाद हो सकता है वाहिद, या तो तस्निया, या तो जमा। तस्निया फिर लफ्ज़ी होते हैं, सूरी होते हैं, यानी वाहिद तस्निया जमा हो सकता है लफ्ज़ी, या तो मानवी, या तो सूरी। फिर जमा मुतलक़ान हो सकता है, या तो शिबे जमा हो सकता है, या तो इसमें जमा हो सकता है। अगर वो फिर जमा हो सकता है लफ्ज़ान या मानन। फिर लफ्ज़ान फिर दो किस्म पर है, हो सकता है जमे मुकस्सर या तो जमे सालिम। अगर जमे मुकस्सर हो तो हो सकता है मुतहल जुमू, या तो उसके अलावा अगर जमे तस्सी हो तो फिर दो हाल से नहीं खाली नहीं होता है, या मुज़क्कर का हो या मुअन्नस का। फिर माना के एतबार से जमा दो किस्म पर है, यानी कौम व बेशी पर दलालत करने के एतबार से जमे किल्लत होगा या जमे कसरत होगा। जमे किल्लत दस्तक जिसके ज़रिया दस्तक बोली जाए, और जमे कसरत वो है जो उससे ज़ायद हो। जमे किल्लत के चंद अवदान हैं, जमे किल्लत के चंद आज़ाम हैं अफ़ूलुन, अफ़ालुन, अफ़ीलतुन, फ़ेलतुन। और जमे तस्सीस जब मुअर्रफ़ बिल लाम हो तब वो जमे किल्लत के हुक्म में होते हैं, उनके अलावा जमे कसरत है। उसके बाद वो एतबार तज़कीर तानीस हो सकता है मुज़क्कर या मुअन्नस। मुअन्नस हो तो हकीकी होगा या मानवी होगा। उसके बाद वो एतबार मुशाबात बिल फ़ेल हो सकता है अवसात, या तो आदना, या तो अक़वा। उसके बाद तस्कीर के चंद वज़न हैं फ़ाइलुन, या तो फ़ाइलीलुन, या तो फ़ाइलतुन, या तो फ़ाइलान, उनके वज़न पर आते हैं तस्कीर। या तो बोएतबार इसमें मुअव्वल होगा, तो इसमें मुअव्वल कभी मुअर्रफ़ बिल लाम यानी अलिफ लाम फिर इस्मिल फ़ाइल के ज़रिया हो सकती है, इस्मिल फ़ाइल या इसमें मफ़ूल। और एक सूरत मक़बूल या तो मक़बूल आन नासिबा। बोएतबार तारीफ़ तनकीर हो सकता है मारिफा या नकीरा। अगर मारिफा हो तो उसकी 7 अक़साम है, मारिफा के 7 किस्म हैं, मज़बूरात, आलाम, अस्मा इशारात, अस्मा मौसूलात, मुअर्रफ़ बिल लाम, मारिफा को निदा, मारिफा को इज़ाफ़त। तो फिर वो एतबार मदलूल हो सकता है, वो एतबार मदलूल हो सकता है ज़ात पर दलालत होगा, या तो सिफत पर। अगर सिफत पर हो मसलन इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल वगैरह हो सकता है। उसके बाद वो एतबार एराब व बिना हो सकता है मौरब या मबनी। अब मौरब किसको कहते हैं और मबनी किसको कहते हैं? मौरब वो है जिसको जुड़ा जाए अपने गैर के साथ और मबनी असल से मुशाबाहत ना रखे, और मबनी वो है जो गैर मुरक्कब वाक़ हो और मबनी असल से मुशाबाहत रखे। तो मबनी फिर 3 किस्म पर है, हो सकता है मबनी असल, या तो मबनी आरिद, या तो मुशाबह मबनी। अगर मबनी असल हो तो हो सकता है फ़ेल माजी, अम्र हाज़िर मारूफ और जुमला हरफ। और एक है जिसमें इख्तिलाफ है, जुमला को भी बाज़ मुहात फरमाते हैं मबनी और बाज़ फरमाते हैं कि वो मबनी नहीं है। उसके बाद मुशाबह मबनी भी चंद है, अस्मा इशारात
मजबूरात, अस्माए मौसूलात, अस्माए अस्वात, अस्माए अफ़ाल। अस्माए अफ़ाल हो तो फिर फ़ेल माजी या तो अम्र हाज़िर मारूफ के माना में होगा, या अस्माए किनात होगा, मुरक्कबत होगा, या तो अस्माए ज़ुरूफ़ होगा, बाज़ ज़ुरूफ़ जो मबनी है। फिर ज़मीर फिर मुत्तसिल हो सकता है या तो मुनफसिल हो सकता है। फिर मुत्तसिल या तो मंसूब मुत्तसिल होगा, या मंसूब मुनफसिल मुत्तसिल होगा, या मंसूब मुनफसिल होगा, मरफू मुत्तसिल होगा, या मरफू मुनफसिल होगा, या तो मजरूर मुत्तसिल होगा। उसके बाद मबनी आरिफ, यानी बाज़ वक्त मबनी होते हैं, बाज़ नहीं, कई वक्त उसको मबनी नहीं किया जाता है। मसलन अगर मुनादा मुफरद मारिफा हो तो वो मबनी होता है, या तो जब वो क्या हो, लाइन नफी जिन्स का इस्म हो तो भी मबनी होते हैं, जब वो आलिफ इस्तिग़ासा जब लायक हो मुनादा में तब भी वो क्या होता है, मबनी होता है। उसके बाद मौरब, तो मौरब मैंने मौरब की तारीफ बता दी है। मौरब यानी एराब, इसमें एराब हो सकता है हरफ से या तो हरकत से। हरफ से हो तो कभी लफ्जी होता है या मानवी होता है, या तो लफ्जी मानवी होता है, तब्दीली होता है। हरफ से हो तो लफ्ज़न होता है या तब्दीलन होता है। इसमें मौरब, अब इस एराब तो इन एराब की 9 सूरतें हैं। बाज़ कुतुब में 9 सूरत से बताते हैं और बाद में 16 सूरत से बताते हैं। मसलन हिदायतुन्नहव में 9 सूरत बताया एराब, इन तीनों एराब को देने के एतबार से 9 किस्म बताया, और नहव में या तो दूसरे किताब में 16 सूरत बताई है। तो अब उनको यानी कब रफ़ा होते हैं तो बताते हैं, हालत रफ़ी ज़ुम्मा से, हालत नस्बी फ़ता से, हालत जबरी कसरा से होता है। मुफरद मुनसरिफ सही हो या तो जारी मजरा सही हो, या तो जमा मुकस्सर हो, तो उनमें हालत रफ़ी ज़ुम्मा से, हालत नस्बी फ़ता से, हालत जबरी कसरा से दिया जाता है। उसके बाद हालत रफ़ी ज़ुम्मा से, हालत नस्बी जबरी कसरा से दी जाते हैं। वो एक इस्म है जिसको हम जमे मुअन्नस सालिम कहते हैं। हालत रफ़ी ज़ुम्मा से, हालत नस्बी जबरी फ़ता से होती है वो अगर वो गैर मुनसरिफ हो। उसके बाद हालत रफ़ी वाव से, हालत नस्बी आलिफ से, हालत जबरिया से होती है अगर वो आसमा सित्ता मुकब्बरा हो। अगर मुसग़्ग़रा हो तो तस्नीर वाला एराब आएगा, अगर तस्निया जमा हो तो तस्निया जमा वाला एराब आएगा, अगर या मुतकल्लिम की तरफ मज़ाफ़ हो तो एराब तस्नीरी होता है। उसके बाद हो सकता है हालत रफ़ी आलिफ से, हालत नस्बी जबरी या मक़बूल मफ्तू से अगर तस्निया हो, हालत रफ़ी वा मक़बूल मज़मूम से, हालत नस्बी जबरी या मक़बूल मकसूर से अगर जमा हो, या तो तीनों हालतों में एराब तब्दीली होता है अगर वो इसमें मकसूर हो, या तो एक हालत नस्बी लफ्जी होता है और हालत रफ़ी जबरी तब्दीली होता है अगर इसमें मनकूस हो, और एक सूरत में वाव तब्दीली से होती है, हालत रफ़ी में वाव तब्दीली से होती है, और हालत नस्बी जबरी में या मक़बूल मकसूर से होती है अगर वो जमे मुज़क्कर सालिम अगर या मुतकल्लिम की तरफ मज़ाफ़ हो। तो आप तीनों एराब को जगह देने और ना देने के एतबार से फिर दो किस्म है, हो सकता है मुनसरिफ या तो गैर मुनसरिफ। अगर मुनसरिफ हो मुनसरिफ या तो गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ अगर गैर मुनसरिफ हो तो हो सकता है दो सबब मशरूत माल आलमियत, ऐसा अगर हो तो उसकी 5 है। मसलन तानिस बित्ता, तानिस मानवी, उजमा अलिफ नून ज़ायदतन और तरकीब। अगर बगैर मशरूत यानी शर्त नहीं बल्कि बाद वक्त जमा हो जाती है, ऐसा है आलम मादूर या तो वस्फ़ और इज़्नफ़े। और बाज़ असबाब है जो तनहा दो सबब से कायम मुकम हो जाती है, यानी जमे मुंतहल जमो या तो तानिस बिल अलिफ ममदूदा या अलिफ मंसूरा। अब मुनसरिफ तो एराब तो रफ़ा तो हालत रफ़ी यानी फ़ाइलियत अलामत फ़ाइली पर दलालत करते हैं। ऐसे कितना है तो बताते हैं, मरफ़ूआत कितने हैं, 10 है। मसलन फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मुब्तदा, खबर, इसमें काना वाक़ात या इसमें कादा वाक़ात या इसमें मावला मुशब्बहता ने बोला ऐसा खबर इन्ना वाक़ात या खबर ला नफ़ी जिन्स और फ़ेल मुदारे जब अवामिल नासिबा और जाज़िम से खाली हो तो वो मरफ़ूआत से है। फ़ाइल वो ऐसा इस्म है जिससे पहले कोई फ़ेल या शिबे फ़ेल हो और वो फ़ेल या शिबे फ़ेल इस इस्म के ज़रिया कायम हो तो उसका हम फ़ाइल कहेंगे। और फ़ाइल तो हमेशा मरफ़ू होता है लेकिन कभी मजरूर भी होते हैं। कब जब मस्दर की इजाफ़त उसकी तरफ हो तो फ़ाइल मजरूर होती है। मसलन इकरामुल मरई अबाहु फर्दुन, यानी अल मरई जो है वो फ़ाइल है लेकिन मस्दर की मज़ाफ़ उसकी तरफ होने की वजह से वो मजरूर हो गया, या तो मीन या तो लाम या तो बा ज़ायदा की वजह से मजरूर होती है। जैसे मा जाना बिन अहादिन कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, या तो हैहाता हैयाता लिमा तुअदून। अब फ़ाइल में और एक सूरत है तनाज़ुए फ़ेलान और एक मसला है तनाज़ुए फ़ेलान, यानी दो इस्म चाहेगा एक इस्म में अमल करने का, ये कम की मिक़दार बताया दो इस्म, इससे ज़ायद भी हो सकता है। मसलन कमा सल्लैता व सल्लिमता व बारकता व रहीमता व तआला इब्राहीम, अला इब्राहीम पर अमल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फ़ेल बहुत सारे हैं। कम की मिक़दार है दो, यानी झगड़ा करने के लिए दो की ज़रूरत होती है, या तो चाहने के लिए एक चीज़ को चाहने के लिए दो चीज़ एक इस्म में अमल करने के लिए दो फ़ेल ज़रूरी होगी।
ज़ायद की कोई मकदार नहीं। तो उसके बाद है नाइब फ़ाइल। मरफ़ूआत में दूसरा है नाइब फ़ाइल, यानी फ़ाइल को करके फ़ाइल की जगह जिस मफ़ूल को रखा जाता है उसको नाइब फ़ाइल कहा जाता है। अरबी में उसको मफ़ूल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु से मौसूल किया जाता है। उसका हुक्म फ़ाइल जैसा है। उसके बाद मुब्तदा है और ख़बर है। अगर कई इसीम अवामिल लफ्ज़िया से खाली हुआ और अगर वह मस्नद इलैहि तो हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मुब्तदा कहेंगे। और अगर वह मस्नद हो तो उसको ख़बर कहेंगे। मसलन ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन मुब्तदा है और क़ाइमुन ख़बर है। तो मुब्तदा और ख़बर, मुब्तदा का असल है मारिफा होना और ख़बर का असल है नकीरा होना। तो बाद में बताया कि अगर नकीरा में तख़सीस पैदा हो तो मुब्तदा बनाना दुरुस्त है। तो तख़सीस के लिए हिदायती नौ हो या काफिया हो, इनमें 6 सूरत बताते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी मुझे मिला 14 सूरत से तख़सीस पैदा होती है। मैं चंद सूरतों को मैं बताऊँगा। इज़ाफ़त लफ्ज़ी से मसलन खम्सु सलवात कतबहुन्नल्लाह, या तो लफ्ज़न सिफत लाने की वजह से, या तो नफ़ी इस्तिफ़ाम के बाद, या लाला के बाद वगैरह 14 है ये सही। उसके बाद है अगर मावला, उसके बाद क्या है मरफ़ूआत का किसी इसमें काना